Hello student, this is KD here, and in this video I am going to explain you everything about facts about the earth. From your school textbook I have already explained in my first two videos about the earth and explain you all facts about the earth. What are how the earth, the shape of the earth, how the earth closest heavenly bodies. In this video, I am going to tell you facts about the earth. Dear students, मैंने इससे पहले भी दो वीडियो दिया है और उन वीडियो में मैंने आपके स्कूल के पुस्तक का सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था पिछले दो वीडियो में आवर अर्थ चैप्टर 11 के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स, कुछ राज, कुछ गुप्त बातें जो अर्थ के बारे में आप नहीं जानते, इस पृथ्वी के बारे में जो नहीं जानते, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, सो कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो, वॉच इट अटेंटिवली एंड एंजॉय इट। नाउ लेट्स मूव अहेड। We are going to discuss about all the facts about the earth in this video. Now, first of all, our earth, our wonderful world. But how much do you know about our earth? But how much do you know about the planet we call home? Let's find out with our fascinating facts about the earth. अर्थ के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर हम हमारे पृथ्वी जो हमारा मूल घर है, हम इसके बारे में कितना जानते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। Now, facts about solar system. Facts about solar system. You know what is a solar system? सोलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं तारामंडल, इसके बारे में आपको भाली भांति तो पता ही होगा। तो आइए कुछ और जानते हैं, समझते हैं अपने अर्थ के बारे में। Can you see in this picture facts about this earth? इस पुस्तक पर, अगर इस पिक्चर पर, इस चित्र पर आप देख सकते हैं कि तारामंडल के सभी ग्रह सूर्य के साथ दिए गए हैं। You can see in this picture that all the planets along with the sun has been given here. Let's check out them. Which is the closest planet towards the sun? You can see here. It is Mercury. Mercury is the closest planet. Mercury जो है वो सूर्य के सबसे सामने वाला ग्रह है। And after that, after Mercury, जो सूर्य से दूसरे दूरी में है वो है Venus. Venus is the second planet which is away from the Earth. And after Venus, let's see our Earth, हमारी पृथ्वी। आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी तीसरे स्थान पर है आफ्टर मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ। आवर अर्थ इज एट द थर्ड पोजीशन आफ्टर मर्क्यूरी, वीनस, देन आवर अर्थ कम्स। ओके, अब हमारे पृथ्वी के बाद आता है मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह भी कहते हैं, मार्स। ओके, सो फर्स्ट मर्क्यूरी, दिस इज द सन, यू कैन सी दिस इज द सन। Then after sun, Mercury is here. Then after Mercury, Venus is here. Then the third place, Earth is here. Then the fourth place, Mars is here. And after Mars, the biggest
planet of the solar system, the Jupiter. Jupiter is here. यानी पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह के बाद जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं. And between this Mars and Jupiter, there are small belt of asteroids body, heavenly bodies, which are called asteroids. ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में आप देख सकते हैं, ये जो हरा हरा रंग का जो है ये एस्टेरॉइड्स है. ये बड़े बड़े पत्थर हैं. अगर ये एस्टेरॉइड, अभी बीच में ये समाचार मिला था कि कोई एक एस्टेरॉइड टकराने वाला है पृथ्वी से. ये बहुत हानिकारक पत्थर है, अगर टकरा जाए किसी भी ग्रह से तो नुकसान कर सकता है. These asteroids are very harmful and very huge stones and masses, which if it collided with any of the planet can destroy and can be very harmful. These asteroids. This is a Jupiter. ये है बृहस्पति ग्रह. And after that we can see Saturn. Saturn है Saturn planet, जिसे हम शनि ग्रह भी कहते हैं. शनि. You can see Saturn is the only planet which have a ring around it. हम लोग देखते हैं कि शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसके आजू बाजू एक रिंग है, एक चारों तरफ एक रिंग है. आप देख सकते हैं. This is Saturn. After Saturn comes Uranus. ये भी एक ग्रह है, Uranus. And after Uranus, Neptune. Neptune is the last planet of our solar system. So in this picture, I have shown you the picture of different planets, including Earth, along with our Earth, Sun, the star at the center. तो हमने इस तारामंडल पे देखा पूरे के पूरे 8 ग्रह को, हमारे पृथ्वी को भी सूर्य के आजू बाजू घूमते हुए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इस चित्र से आप बहुत कुछ समझे होंगे. नाउ लेट्स मूव अहेड. वॉच दिस पिक्चर प्रॉपरली. मैं चाहता हूं आप इस पिक्चर को और एक बार गौर से देखें. इस तारामंडल का चित्र आप गौर से देखें. I hope you have understood this picture properly. आशा है चित्र को आप अच्छे समझ गए होंगे. अब मैं आगे बढ़ता हूं. Now these are the facts which I'm going to tell you about our Earth. Earth का ये जो कुछ फैक्ट्स है, कुछ गुप्त जरूरी बातें हैं जो हम देख सकते हैं, वो ये है. नंबर 1, Earth is the 3rd planet from the Sun in our solar system. हमारे तारामंडल में अर्थ तीसरा ग्रह है, जो जस्ट अभी मैंने चित्र दिखाया. Its name comes from the Old English and Germanic word meaning the ground. ये अर्थ शब्द अंग्रेजी या जर्मन के पुरानी भाषा द ग्राउंड से आया है. द अर्थ. नाउ फैक्ट नंबर 2 देखते हैं. फैक्ट नंबर 2 क्या है? Our amazing planet has been around for quite some time. हमारे जो अचंभाजनक ये जो ग्रह हैं, हमारे आजू बाजू बहुत दिन तक रहते हैं. By researching our planet's rocks, scientists have calculated the Earth to be around 4.5 billion years old. और वैज्ञानिकों का अगर माने, जो भूवैज्ञानिक जो पढ़ते हैं इस पृथ्वी के बारे में, उन्होंने ये बताया है कि हमारी पृथ्वी
4.5 बिलियन साल पुरानी है। कितनी पुरानी है हमारी पृथ्वी? आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव फर्दर। ये हमारा आसमान है, आप देख सकते हैं ये पृथ्वी का निचला हिस्सा है। अगर हम अंतरिक्ष देखें तो पृथ्वी कुछ इस तरह नजर आएगी। ये पृथ्वी का चित्र आप ठीक से देख लें। ये पृथ्वी है। पृथ्वी। Now we are moving ahead. Now, fact number 3. Like all the planets, Earth's orbit travel around the sun. बाकी सब ग्रह की तरह पृथ्वी की भी जो ऑर्बिट है वो सूर्य की चारों तरफ घेरे डालकर अपनी परिक्रमा पूरी करती है। And it does so at some serious speed. और पृथ्वी ऐसी करती है एक पर्याप्त स्पीड पे, एक पर्याप्त तेजी पर, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से। The earth moves around the sun at the speed of 30 kilometer per second. It is much speed, 30 kilometer per second. In fact, it takes 365 days, that is 1 year, for the earth to complete one full orbit. और एक पूरा रिवोल्यूशन को खत्म करने में, एक पूरी परिक्रमा, एक परिक्रमा को पूरा करने में पृथ्वी 365 दिन लगाती है। सूर्य की चारों तरफ एक परिक्रमा लगाने में 365 दिन लगाती है। Now, fact number 4. Have you ever wondered why we have different seasons? आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग जो सीजन है, यानी कि जो मौसम है, क्यों बदलते रहते हैं? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा। नहीं सोचा। ओके, तो अब ये डिफरेंस आप यहां पढ़ेंगे। तो ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि पृथ्वी पर सीजन बदलते हैं। पर ये क्यों बदलते हैं, यही देखना है हमें। Have you ever wondered why we have different seasons? We will tell you. It is because the earth is tilted 23.4 degree on its axis. ये इसलिए कि हमारा पृथ्वी 23.4 डिग्री के 23.4 डिग्री के सतह से घूमी रहती है एक जगह। An imaginary line, it is because the earth is tilted 23.4 degrees on its axis. An imaginary line is straight through the middle of the planet from the North Pole to the South Pole.
This means that the different parts of the globe are tilted towards the sun at different times of the year or at different during its globe. इसका मतलब यह है कि 23% 4 डिग्री के हिसाब से घूमी रहती है, ढलान पर रहती है एक तरफ, जिसके वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो उत्तरी या दक्षिणी हिस्सा है वो झुका रहता है और जिसके वजह से अलग अलग मौसम बदलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार जो कारण है सीजन बदलने का वो इस चित्र पे आप देख सकते हैं। किस प्रकार पृथ्वी अपना पोजीशन बदलती है, अपना स्थान बदलता है। Now fact number 5. Not only does Earth zoom through the space, it also spins on its axis. What happened the result? The result, we have daytime and nighttime. As the planet rotates, the side facing the sun receives daylight and the other side is in darkness. तो ये जो अर्थ जूम होता रहता है स्पेस से हमें जो देखने मिलता है वो क्यों होते हैं कि डे टाइम और नाइट टाइम होता है, इसलिए क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो घूमते रहती है साइड बाय साइड, उसका एक हिस्सा पृथ्वी सूर्य को देखता है और दूसरा हिस्सा नहीं देख पाते हैं। तो जो हिस्सा सूर्य को देखता है वो हिस्से में दिन होता है और जो पिछवाड़ा हिस्सा जिसमें रोशनी सूरज की नहीं पहुंच पाती है वहां रात होता है। नाउ कम टू फैक्ट नंबर 6. पीपल ऑफन थिंक ऑफ अर्थ एज अ जाइजेंटिक स्फीयर. लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा भूचाल, एक बहुत बड़ा गोल जाइजेंटिक स्फीयर है, बट इन फैक्ट इट्स शेप इज मोर लाइक अ स्क्वेशेबल बॉल. मगर ज्यादातर उसका शेप जो है वो एक स्क्वेश बॉल तक है, that bulges out at the equator. जो इक्वेटर पे स्क्वेश बॉल that bulges out at the equator. स्क्वेश बॉल है जो bulges out at the equator, जो इक्वेटर पे मतलब दोनों तरफ से वो चपा हुआ है और इक्वेटर पे की तरफ फैला हुआ है. An imaginary line around the middle of the planet, exactly between the North Pole and the South Pole. That means हमारा पृथ्वी जो है वो ऊपर से चपटा है और बीच से थोड़ी निकली हुई है. नाउ फैक्ट नंबर 7. फैक्ट नंबर 7. This bulge is caused by the Earth's spin and the effect of gravity. Gravity is an invisible force that attracts objects towards each other. It is the force that pulls things towards the Earth and stops us floating off into space. ये जो बीच का जो हिस्सा जो पृथ्वी का फैला हुआ है और ऊपर छपा हुआ है, ये होता है ग्रेविटी, जिसे हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसे सर आइजैक न्यूटन ने खोज किया था, जिसकी डिस्कवरी सर आइजैक न्यूटन ने पता लगाया था ग्रेविटी का. इस ग्रेविटी जो चुंबक पावर है, जो चुंबक की तानने की शक्ति है जो पृथ्वी की, इसी कारण पृथ्वी ऊपर से चपटा रहता है और बीच से निकला हुआ रहता है, bulge out in the middle. I hope you understanding this video and fact about the earth. You can see this picture of the earth. आप देख सकते हैं ये पृथ्वी का चित्र है जो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह अगर आप अंतरिक्ष से तस्वीर लेंगे तो. Now come to fact number 8. The Earth's diameter, distance that is straight through the middle, measures a huge 12,800 kilometers, making it the 5th largest planet in the solar system. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are even bigger. हमारी पृथ्वी जो है हमारे तारामंडल में 5वां बड़ा ग्रह है. हमारी पृथ्वी से जो बाकी ग्रह बड़ा है वो है जुपिटर,
Saturn, Uranus, and Neptune. Now come to fact number 9. Earth is the only planet in our solar system knows to support life. पूरे तारामंडल में, पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही यानी कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन निर्वाह किया जा सकता है, जिस पर जीवन है, और बाकी ग्रह में नहीं. This is because it has two very important things that living creatures need to survive. और इस पृथ्वी में जीवन इसलिए है, इसके दो कारण हैं. वो दो कारण क्या है? Let's see. Lots of oxygen and lots of water. इस पृथ्वी पे बहुत सारे ऑक्सीजन है और बहुत सारे पानी है. इस वजह से पृथ्वी पर जीवन है. Its distance from the sun means it's not too hot and not too cold for creatures to live on to. और हमारी पृथ्वी का जो स्थान भी है, जो दूरी है सूर्य से, ऐसे स्थिति पे दूरी है कि ना ही हम पृथ्वी से बहुत दूर है, ना ही बहुत करीब. तो इसलिए जीवन हमारे पृथ्वी पर है. अब देख सकते हैं पृथ्वी की ये झलक, आसमान, पर्वत, पानी, ये हमारा पृथ्वी का क्षेत्र है. नाउ कम टू फैक्ट नंबर 10 एंड द लास्ट फैक्ट. Earth's atmosphere is also hugely important for sustaining life. हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो एक परत जो हमारे पृथ्वी को घेरे रखती है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. वो बहुत जरूरी है हमारे लाइफ जीवन के लिए. The atmosphere is a huge blanket of gases, mostly oxygen and nitrogen, wrapped around the earth, protecting our planet from the sun's strong rays. हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो एक परत है, जिस तरीके से एक ब्लैंकेट, एक चादर की तरह ढके हुए हमारे पृथ्वी को, जो ज्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, जो हमारे पृथ्वी को परत की तरह घेरे रखता है, जो सूर्य के सीधे रोशनी को पृथ्वी तक आने नहीं देता, सूर्य के हानिकारक रेस को, किरणें को हमारे तरफ आने नहीं देता, जो हमारी पृथ्वी को रक्षा करती है. At the same time, the atmosphere helps to keep our Earth's temperature comfortable for living beings and is protect us from meteors too. और ये हमारी जो परत है, जो पृथ्वी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर की परत है, वो हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को, यानी गर्मी कितना होगा, ठंडा कितना होगा, एक टेम्परेचर को मैनेज करती है. और मेटेओर्स, जो हानिकारक मेटेओर, जो गैसेस के जो बने हुए और ईंटों के और गैसेस से बने हुए जो हानिकारक मेटेओर्स हैं, जो गिरते रहते हैं अंतरिक्ष में, उससे भी हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है ये एटमॉस्फेयर की परत. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडे द फैक्ट्स अबाउट द अर्थ. ये वीडियो आपको मजा आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे. You must have enjoyed this video and you must have understood. So keep on watching my video and understand it. So we'll meet you again in my next video. Goodbye. See you again.